आपने अपने दोस्त को बोला, फ्रेंड को बोला कि मैं तुम्हें एक मूवी दिखाऊंगा कल 4 बजे चलते हैं मोना सिनेमा हॉल में जाकर के हम लोग मूवी देखेंगे, या मॉल में जाकर के पीवीआर में जाकर के हम लोग मूवी देखेंगे। और आपने ऐसा बोला, दोस्त आपका पहुंच गया, वो पहुंच गया सिनेमा हॉल, आप नहीं पहुंचते हैं, आप नहीं पहुंचते हैं, तो क्या आपका दोस्त आपके ऊपर केस कर सकता है? क्या आपका दोस्त केस कर सकता है कि तुमने प्रॉमिस किया था और मतलब कि तुम आए नहीं, तो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप क्या माना जाएगा? क्या ये लीगल ऑब्लिगेशन था? नहीं। दैट दिस इज द मोस्ट लीडिंग केस, दिस इज द लैंडमार्क केस, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट केस, बाल्फर वर्सेस वाल्फर। और ये आप जानते हैं कि ये बाहर का केस है, ये बाल्फर वर्सेस वाल्फर इंडिया में तो है नहीं। टाइटल एक होता है ना, गुप्ता जी वर्सेस गुप्ता जी, हस्बैंड का टाइटल वाइफ लगाती है, तो फॉरेन में भी है, बाल्फर मिस्टर हैं और मिसेज वाल्फर हैं। Hello everyone, a very good evening to you all, to all my wonderful students, to all my viewers and to all my dear friends. I am Avinash and I am here as usual to explain you certain topics from law. Say the legal topics, the burning legal issues. Every day is a tradition at the YouTube channel on Chanakya CLAT classes and Chanakya Judicial Academy that we discuss certain issues, we discuss certain concepts, legal concepts, right, from all the laws. And today the topic which we have taken up for the discussion is intention to create a legal relationship. This question was asked by one of our students, Sharda, studying at National Law School, Gandhinagar. Okay, the question is very simple. Intention to create a legal relationship. You know that under Indian Contract Act 1872, although there is no express positioning of this particular point, that is intention to create a legal relationship, still because of the precedents, because of the judgments given by the honorable courts, we have developed that there must be intention to create a legal relationship. There must be intention of the parties, there must be common intention of the parties to enter into a legal relationship, right? The question, one of the question which I have taken up relating to this point only, that is intention to create a legal relationship, right? The question is, in which of the following cases it was held that to create a contract there must be a common intention of the parties to enter into legal obligations. All right, options are as follows. One is Balfour versus Balfour, Simpkins versus Page, third one is R versus Clark, and the fourth one is Jones versus Padawatten, right? My dear viewers, the correct option is A, that is first, that is Balfour versus Balfour. You all should be aware of that this is the most leading case, this is the landmark case, this is the most prominent case on the point that there must be common intention of both the parties to enter into a legal relationship. बाल्फर वर्सेस वाल्फर इसका एक लीडिंग केस है। समझते हैं कि बाल्फर वर्सेस वाल्फर में क्या हुआ था। मैं मोटे तौर पर इसके फैक्चुअल सिचुएशन को आपको समझाता हूं, राइट? एक कपल है जो हॉलीडे के लिए कहीं अब्रोड घूमने जाते हैं, आप देश का भी नाम भूल जाओ, राइट? एक कपल है जो कि अब्रोड, और ये आप जानते हैं कि ये बाहर का केस है, ये बाल्फर वर्सेस वाल्फर इंडिया में तो है नहीं, और टाइटल है, इसीलिए हस्बैंड वाइफ का टाइटल एक होता है ना, गुप्ता जी वर्सेस गुप्ता जी, हस्बैंड का टाइटल वाइफ लगाती है, तो फॉरेन में भी है, बाल्फर मिस्टर हैं और मिसेज वाल्फर हैं, उनका भी टाइटल बाल्फर ही है, इसीलिए हस्बैंड वाइफ, ये तो आप समझ सकते हैं। तो एक कपल है, ये फॉरेन जाते हैं वेकेशन पे, छुट्टियां होती है तो घूमने जाते हैं, चलो यार घूम करके आते हैं। तो वहां पर जो मिसेज बाल्फर है वो बीमार पड़ जाती है, तो जो मिस्टर बाल्फर हैं वो वापस लौट जाते हैं।
लौट जाते हैं क्योंकि उनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी, उनको जॉब पे है, काम तो करना पड़ेगा, तो लौट जाते हैं। लेकिन वो वाइफ को ये बोल करके आते हैं कि मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा और भेजता रहूंगा, क्योंकि तुम्हें जरूरत है, यहाँ पे इलाज वगैरह कैसे चलेगा, कैसे रहोगी, तो तुमको पैसे भेजते रहेंगे। कौन बोलते हैं? मिस्टर वाल्फर। ऑलराइट, तो मिस्टर वाल्फर ये प्रॉमिस करके चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर वाल्फर इसके बाद पैसा भेजते नहीं है। मिस्टर वाल्फर इसके बाद पैसा भेजते नहीं है। तो मिसेस वाल्फर उनको बोलती है कि यार तुम पैसा नहीं भेज रहे हो, तो बोलते हैं कि हम नहीं भेजेंगे। तो मिसेस वाल्फर केस कर देती है, केस कर देती है कि इन्होंने मुझे बोला था, प्रॉमिस किया था और इन्होंने भेजा नहीं। तो कोर्ट का ये जजमेंट आया कि इन्होंने कैजुअली बोला, कैजुअल प्रॉमिस किया, इसमें देयर वाज नो इंटेंशन, देयर वाज नो लीगल इंटेंशन, राइट? That too, he had the intention to enter into a legal relationship. He did not want that a legal obligation should arise out of it. ठीक है, उनका किसी भी, मिस्टर वाल्फर का जब उन्होंने ये बोला था तो उनका इंटेंशन नहीं था कि हम लीगल रिलेशनशिप में जाएं। का मतलब ये है कि अगर मैंने जो बोला है, अगर मैं वो फुलफिल नहीं करूंगा तो मेरे अगेंस्ट में केस हो जाएगा। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब यही है कि आपको करना ही करना है, आप बाउंड है। तो बाल्फर, मिस्टर बाल्फर ने बोला कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था, और कोर्ट ने इस बात पे रिलाई भी किया और माना गया कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है, और यहां पर मिस्टर बाल्फर का इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप नहीं था। बात समझ रहे हैं आप? मैं आपको आपके डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल देता हूं, आप समझ जाइएगा। जैसे कि अगर कोई, आपने अपने दोस्त को बोला, फ्रेंड को बोला कि मैं तुम्हें एक मूवी दिखाऊंगा, कल 4 बजे चलते हैं मोना सिनेमा हॉल में जाकर के हम लोग मूवी देखेंगे, या मॉल में जाकर के, पीवीआर में जाकर के हम लोग मूवी देखेंगे। और आपने ऐसा बोला, दोस्त आपका पहुंच गया, वो पहुंच गया सिनेमा हॉल, आप नहीं पहुंचते हैं, आप नहीं पहुंचते हैं, तो क्या आपका दोस्त आपके ऊपर केस कर सकता है? क्या आपका दोस्त केस कर सकता है कि तुमने प्रॉमिस किया था और मतलब कि तुम आए नहीं, तो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप क्या माना जाएगा? क्या ये लीगल ऑब्लिगेशन था? नहीं। आप दोस्त को बहुत बार बोलते हो कि यार चलो, मतलब कि ये काम कर दो, पार्टी दे देंगे, चलो तुमको पार्टी देंगे, और पार्टी आपने नहीं दिया, ट्रीट नहीं दिया, तो क्या केस हो जाएगा? हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, एक बड़ा ही प्यारा सा रिलेशन है। तो हस्बैंड वाइफ बहुत तरह की चीजें मतलब एक दूसरे को बोल सकते हैं, और बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये ला के दे दूंगा, वो ला के दे दूंगा। तो अगर नहीं ला करके दिया तो क्या वाइफ केस कर देगी? क्या यहां पर इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप माना जाएगा? लॉ कहता है नहीं माना जाएगा, लॉ कहता है नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप अपने किसी दोस्त को बोले कि तुम्हारे बर्थडे में हम तुमको आईफोन देंगे, आपने आईफोन नहीं दिया, वो केस कर दिया, चलेगा क्या? कैजुअल है, इंटेंशन नहीं था आपका कि हम लीगल रिलेशनशिप, लीगल ऑब्लिगेशन में एंटर करें। तो आपका जब भी इस तरह के, आप दुनिया भर के एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें दोस्तों में प्रॉमिस होता है, कपल्स में प्रॉमिस होता है, जो भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनमें प्रॉमिस होता है, आप भाई बहन में प्रॉमिस होता है। भाई ने बोला कि बहन को कि ये काम कर दो, मैं मतलब एक आइसक्रीम तुम्हें खिलाऊंगा, वो आइसक्रीम नहीं खिलाए तो क्या बहन केस कर देगी? इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप नहीं है, तो केस नहीं होगा, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं कर रहा है किसी भी तरह। ठीक है, आई होप दैट यू हैव गॉट माई पॉइंट्स इन अ वेरी वेरी clear manner, as clear as crystal. So guys, stay tuned on our YouTube channel, that's the biggest law learning platform of the country, on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya Clerk Classes. We are physically available. Our classes are offline, in the offline mode, physically available at Patna, Lucknow, Banaras and Delhi. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Shri Ram.